R की। R with this topology, with this basis, R is called K topology। तो हमने 3 तरह की टोपोलॉजीज डिफाइन की R के ऊपर, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी एंड K टोपोलॉजीज, बाय यूजिंग 3 basis set BL, B up and BK। Now we are going to discuss about subspace topology or relative topology। We have to find out the criteria to find out the basis for relative topology। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि सबस्पेस टोपोलॉजी क्या थी। अगर एक्स टॉ हमारे पास एक टोपोलॉजी है और ए उसका एक सबसेट है, और इस सबसेट ए के ऊपर हम एक नई टोपोलॉजी बनाएंगे जिसको हम कहेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए। हमने क्या देखा था कि हमने रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए हम टा ए कैसे बनाते हैं, बाय टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टा विद द सेट ए, then we can generate a new topology on subset A। यहाँ पे टा ए क्या है, टोपोलॉजी है फॉर द सेट ए, जिसके एलिमेंट्स को हम कैसे जनरेट करेंगे, बाय टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए विद एलिमेंट्स ऑफ टा। तो इस तरह से जो हमें सेट मिलेगा वो होगा रिलेटिव टोपोलॉजी का सेट डिफाइन ऑन सबसेट ए। अब इस रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए टा ए के लिए हमने बेसिस फाइंड आउट करनी है। तो उसकी बेसिस कैसे फाइंड आउट होंगी, अगर हमारे पास एक सेट बी गिवन है जो कि बेसिस का सेट है टा के लिए, तो हमने अब एक बेसिस का सेट बनाना है टा ए के लिए, रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए। टा ए के लिए जो बेसिस का सेट बनाएंगे उसे हम डिनोट करेंगे बी ए से, और बी ए के एलिमेंट्स हमें मिलेंगे बाय टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए विद द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। अगर हमने बी ए के एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं तो जो बी सेट था हमारे पास, बेसिस का सेट था, बी कह लें या बीटा कह लें टा का, हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको बीटा से डिनोट किया था बेसिस सेट फॉर टा के लिए। तो उसके अगर तमाम एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन हम ए से लेते जाएंगे तो हमारे पास बेसिस जनरेट होती जाएंगी रिलेटिव टोपोलॉजी टा ए के लिए। सो द सेट बी ए फॉर्म अ बेसिस फॉर टा ए वेयर बीटा बी अ बेसिस फॉर टा। Now we are taking an example for the understanding of basis of a relative topology। We consider the set X with 4 points A, B, C and D with the topology have the elements empty set, singleton set A, singleton set B and the set AB, the set ACD and the set X। Now consider a subcollection of the TA which is considered as basis for TA। The basis set for TA is beta, have 3 elements, the singleton set A, the singleton set B and the set ACD। Beta is a basis for TA। We consider a subset A have 3 elements A, B, C, and we define a relative topology on A। We have to take the intersection of the set A with the elements of TA। By taking this intersection, we get the relative topology TA A have elements empty set, singleton set A, singleton set B, the set AB, the set AC
and the set A. This star A is called relative topology on A. Now we have to find out the basis for this relative topology. In the above definition, we see that the basis for relative topology find out by taking the intersection of the elements of beta with the set A. By this intersection we get the basis set BA for relative topology ta A. Then BA have elements the set A, the set B and the set AC. Now we have to check this set BA form a basis for relative topology ta A by taking the union of all the elements, by taking all possible unions of the elements of BA. Very first we have to form empty set phi, which is easily obtained, and the second element is singleton A, the third element is singleton B. By taking the union of first two elements of BA, we get the set AB. And the fifth element is set AC, and by taking the union of all three elements of BA, the set A, B and set AC, we get the set A. So we can see that by taking all possible union of the elements of BA, we get the relative topology ta A. So we can say that BA is the basis for relative topology ta A. Theorem for basis of relative topology. Let A be a subset of a topological space X star. Then the collection beta A have the elements of the form B intersection A, where B belongs to beta of subset of A, form a basis for relative topology ta A, where beta is a basis for ta. हमें इस थ्योरम की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए. वो क्या है कि एक सबसेट ले लिया हमने टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, तो वो कहता है कि ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं बी इंटरसेक्शन ए की फॉर्म के, वेयर बी बिलोंग्स टू बीटा, और बीटा क्या है, बेसिस है टोपोलॉजी टा की. तो ऐसी सब कलेक्शन जो होगी हमारी, वो क्या बनाएगी, बेसिस बनाएगी टा ए के लिए. लेट्स सी द प्रूफ. वी नो डैट टा ए किसके इक्वल होता है, द सेट ऑफ द फॉर्म यू इंटरसेक्शन ए, वेयर यू बिलोंग्स टू टा. टा के तमाम एलिमेंट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए से, तो हमें रिलेटिव टोपोलॉजी टा ए मिल जाता है. अब हमें ये शो करना है कि तमाम एलिमेंट्स वी जो बिलोंग करते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी टा से, वो लिखे जा सकते हैं यूनियन में बीटा ए के एलिमेंट्स के. और बीटा ए के एलिमेंट्स किस तरह की फॉर्म के हैं, बी इंटरसेक्शन ए की फॉर्म के. हमने यहाँ पे शो की करना है कि V इक्वल है यूनियन ऑफ ऑल BAIs, और वेयर BAIs किसके इक्वल है, BI इंटरसेक्शन A के. अब हमें पता है V किसके इक्वल होता है, U इंटरसेक्शन A के, और U बिलोंग करता है टा से, और टा की बेसिस है बीटा. तो U का टा का हर एलिमेंट वो बीटा के एलिमेंट्स के यूनियन में लिखा जा सकता है. तो हमने ये जो एलिमेंट U कंसीडर किया है, ये लिखा जा सकता है यूनियन में बीटा के एलिमेंट्स के. तो हम लिख सकते हैं U को, U इक्वल है यूनियन ऑफ BIs, वेयर ऑल दिस BIs बिलोंग्स टू बीटा, एज बीटा इज द बेसिस फॉर टा. हम इस U की वैल्यू को V में पुट करते हैं. V किसके इक्वल है, U इंटरसेक्शन A के, और U इक्वल है यूनियन ऑफ BIs के.
तो हमें क्या मिल गया, यूनियन ऑफ बी आई इंटरसेक्शन ए। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम वी को लिख सकें बी आई इंटरसेक्शन ए के यूनियन में। तो हम कह सकते हैं कि द सेट बीटा ए इज़ अ बेसिस फॉर रिलेटिव टोपोलॉजी टा ए, क्योंकि रिलेटिव टोपोलॉजी टा ए का हर एलिमेंट बीटा ए के एलिमेंट्स के यूनियन में लिखा जा सकता है, वेयर बी आईज आर बिलोंग्स टू बीटा एंड बीटा इज अ बेसिस फॉर टा ए। बाय यूजिंग दिस थ्योरम हम किसी भी रिलेटिव टोपोलॉजी की बेसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं।